Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book and it is by Pearson. So today we are going to do chapter 14 if को हम हिंदी में अगर बोलते हैं. Let's see this one part first and then start the poem. What is the one piece of advice an elder has given you that you have always treasured? शेयर यानी कि एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस आप बताइए जो आपके बड़ों ने दी गई है और उसको आपने एक खजाने की तरह संभाल के रखा है. आप उसे शेयर कर सकते हैं. अभी पहले मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करूंगी. So, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating and yet don't look too good nor talk too wise. So now let me do the translation of this paragraph. यदि आप अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं जब लोग आपको दोष दे रहे हों तो यह आप पर है. यदि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं जब लोग आप पर संदेह डाउट कर रहे हो लेकिन उनकी शंका का भी प्रायश्चित है. या फिर झूठ बोला जा रहा है, झूठ में सौदा नहीं है, या नफरत करने का रास्ता अपनाया जा रहा है तो वह गलत है. या यदि आप बहुत अच्छे न दिखें न ही वाइसली बातें करें, बुद्धिमान तरीके से बातें करें. So now let's start the second paragraph. If you can dream and not make dream your master, if you can think and not make thought your aim. If you can meet with Trump and disaster and treat those imposters just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. अगर आप सपने देख सकते हैं पर आप अपने सपनों में मास्टर नहीं कर सकते हैं. यदि आप सोच सकते हैं लेकिन अपने विचारों को अपने लक्ष्य नहीं बना सकते. अगर आप ट्रम्प और डिसास्टर कैलेमिटीज़ से मिलते हैं और उन दोनों धोखेबाजों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं. यदि आप अपने द्वारा बोला गया सच सुनने के लिए तैयार हैं और नेव्स यानी कि जो विलियंस होते हैं उनको आप ट्विस्ट करके एक ट्रैप में फंसा सकते हैं. या फिर ऐसी चीज़ें देखें जिनको लाइफ दी है, जो टूटी हुई चीज़ है या फिर कुछ चीज़ जिसको आपने जॉइन करके बनाया है. So now let us start the third paragraph. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one ton of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which say to them hold on. हीप यानी कि एक ढेरा लगा देते हैं. अगर आप अपनी विनिंग्स का एक पूरा ढेर लगा देते हैं और उन सबको रिस्क कर देते हैं वो पिच एंड टॉस वाली कंपटीशन में और हार जाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से और एक बार भी अपने लॉस के बारे में बोलते नहीं हैं. अगर आप अपने हाथ, अपने नर्व्स और सिन्यू यानी कि वो एक टाइप का टफ फाइब्रस टिश्यू है जो जॉइन करता है मसल को बोन के साथ, इन सबको आप फोर्स करते हैं. जब वो चले जाते हैं और वो आपको सर्व नहीं कर पाते हैं, इन तीन चीज़ों को अगर आप फोर्स करते हैं, हाथ, नर्व, इन सबको, तो आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा जब आपके अंदर कुछ नहीं हो. आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक विल, जब वो बोलते हैं होल्ड ऑन, रुक जाओ. So now let us go on with the last paragraph of this poem. If you can talk with crowd and keep your virtue, or walk with king and nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth, everything that isn't it, and which is more, you will be a man, my son. आप बात कर सकते हो क्राउड्स के साथ, जो मतलब क्राउड होता है ना, बहुत सारे पीपल एक जगह जमा होते हैं तो क्राउड होता है, उन सब के साथ बात कर सकते हो. कीप योर वर्च्यू एक टाइप का क्वालिटी, एक अच्छी हैबिट है, यानी कि तभी भी आप अपनी हैबिट और वो मेंटेन रखते हो. या फिर आप वॉक करते हो राजाओं के साथ और अपना कॉमन टच लूज़ नहीं करते हो. आप अपने लव्ड वंस और अपने रिश्तेदार जो होते हैं वो आपको हर्ट नहीं करते हैं. अगर सब मैन आपके ऊपर काउंट करते हैं पर नन टू मच, यानी कि सब इतने भी नहीं करते. अगर आप फिल कर सकते हो एक अनफॉरगिविंग मिनट जिसके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, जो वर्थ करता है डिस्टेंस रन, आपकी अर्थ है, सब कुछ उसमें आपका है, इजंट इट. एंड ये सब बहुत है, ये मतलब अधिक मात्रा में है. एंड लास्ट में पोएट कहता है यू विल बी माई मैन माई सन. और ये जो पोएम है ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है.